Hello class 12. So yesterday we were doing the rules that we follow for changing from direct to indirect speech. Okay, some of the rules we had done yesterday. Today we will continue from there. Okay, we had done till rule number 5. Today we will be continuing from here. Rule number 6. Alright, if the sentence is in past continuous tense, okay, if your direct speech ka sentence is in past continuous tense, when you'll convert it into indirect speech, it will the tense here will become past perfect continuous. ठीक है, past continuous tense present continuous tense नहीं बनता है, it changes into past perfect continuous. For example, the sentence here is direct speech में है Raju said I am repairing a car. When we'll convert it into indirect speech, the sentence will become Raju said that he had been repairing a car. Was जो है यहाँ पे had been बन गया. ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 7 फ्यूचर टेंस, जिसमें शैल विल ये सब रहता है सेंटेंस में. ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस. जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है, इट चेंजेस इनटू फ्यूचर इन द पास्ट. जैसे ये सेंटेंस में शुड या वुड हो जाता है, शैल विल की जगह पर शुड या वुड लगाते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है द टीचर सेड आई विल गिव यू नोट्स. जब चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, द सेंटेंस विल बिकम the teacher said that he would give them notes. Okay, will has become would here. Rule number 8 auxiliary verbs. Auxiliary verbs जैसे would, should, might, could, ought, must, ये सब अगर sentence में रहा direct speech वाले sentence में, then when we'll change it into indirect speech there will be no change. Okay, कोई change नहीं होगा ये सब auxiliary verbs में. For example, direct speech का सेंटेंस है he said I would like to take milk. When we'll change it into indirect speech, the sentence will be he said that he would like to take milk. Would like remains the same. Okay, next rule number 9 past perfect tense. अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में past perfect tense रहा, then also there will be no change in the tense जब हम लोग उसको indirect में change करेंगे. For instance, the direct speech का sentence is she said I had gone to Bhagalpur. When we'll convert it into indirect speech, the sentence will be she said that she had gone to Bhagalpur. Had gone ही रहेगा. ठीक है, it will remain the same. Next, rule number 10. This is the last rule. Rule number 10 है conditional to perfect conditional direct. ठीक है, क्या होता है, जैसे सेंटेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में कोई कंडीशन है, ठीक है, तब किस तरीके से चेंज करेंगे हम लोग, परफेक्ट कंडीशनल डायरेक्ट में चेंज करेंगे उसको. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ही सेड इफ़ आई हैड द मनी. दिस इज द कंडीशन या इफ़ आई हैड द मनी, ये कंडीशन है सेंटेंस में. आई कुड बाई द कार. इनडायरेक्ट में जब उसको चेंज करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ही सेड दैट इफ़ ही हैड द मनी. ये तुम्हारे कंडीशन हो गया यहाँ पे. ही कुड हैव बॉट द कार. परफेक्ट कंडीशनल डायरेक्ट में चेंज हो गया, ये कुड हैव बॉट हो गया ये. ठीक है, ऑलराइट, ये तो तुम्हारा रूल्स हो गया. यहाँ पे जितना भी रूल्स एक्सप्लेन हुआ है क्लास 12, प्लीज़ उसको रिवाइज करना एंड गो थ्रू इट वंस. ठीक है, लेट्स क्विकली सॉल्व एन एक्सरसाइज हियर. चेंज द नरेशन का एक्सरसाइज. ठीक है, नरेशन, मोड ऑफ नरेशन का एक्सरसाइज है. सेंटेंस नंबर 1 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है सेंटेंसेस को. I'll have a cup of tea. ठीक है, कोट्स के अंदर है ये. My father said because I'm not hungry. ठीक है, ये सेंटेंस एक ही है बट इसको दो अलग अलग हिस्से में लिखा गया है. फादर क्या बोल रहे हैं, I'll have a cup of tea because I'm not hungry. Okay, now this sentence, ये जो सेंटेंस है, it is in future tense. ठीक है, and as the rules of narration will को हम लोग क्या करेंगे, will को हम लोग चेंज कर देंगे would में. ठीक है, and the present tense will be transformed into past tense. ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, my father said that he would have a cup of tea because he wasn't hungry. ठीक है, यहाँ पे I will था तो यहाँ पे क्या हो गया, would हो गया, will की जगह पर would. और I am not hungry
ठीक है, ही वॉजेंट हंग्री हो गया, आई एम नॉट से वॉज नॉट हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 2, Pamela said, man is mortal. Now this is very simple. Man is mortal, ये universal truth है, you cannot change this truth. Man is mortal, हर जगह पर लिखते हैं, man was नहीं लिख सकते हैं. So ये बहुत simple हो गया, तो उसको change नहीं करना है इसमें tense. क्या होगा simply, Pamela said that man is mortal. Okay, quotes remove करके सिर्फ that लिखने के बाद same tense लिख देंगे. Sentence number 3, he said to me, how long will you stay here? Okay, sentence hai, he said to me, how long will you stay here? Now this sentence interrogative sentence है ये वाला, ठीक है. interrogative sentence में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे he asked me, said की जगह पर यहाँ पे said to me की जगह पर asked लगा देंगे. he asked me how long I would, will again is changed into would, and here की जगह पर देर हो जाएगा, हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देर. ओके, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 4, द मैन सेड टू द ऑफिसर, प्लीज हेल्प मी. नाउ दिस इज वेरी लाइक सिंपल है. प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कहलाता है ये. सो द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प हिम. सिंपल. ओके. सेंटेंस नंबर 5, she asked me, are you happy in your new job? ठीक है ना. ये asked me जो है ये भी एक तरीके का लाइक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन WH वाला कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, जैसे where, when और what ये सब नहीं लिखा हुआ है. सो जब ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे WH वाला वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, हम लोग यहाँ पे चेंज करने के टाइम पर if लगा सकते हैं. ठीक है, she asked me if I was happy in my new job. ठीक है. Sentence number 6, he remarked 2 and 2 makes 4. अब ये भी this is a kind of a scientific fact. 2 and 2 makes 4. ठीक है. 2 and 2 won't like made 4 या फिर used to make 4 या फिर ऐसा तो कुछ नहीं चेंज हो सकता है यहाँ पे, कोई टेंस पॉसिबिलिटी ही नहीं है. तो जैसे जो रूल तुम लोगों ने फॉलो किया, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, वो सब के लिए वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा. ही रिमार्क्ड दैट 2 and 2 makes 4. Tense will remain the same here. Sentence number 7, don't waste time, the teacher said to the students. ठीक है. Now don't waste time, जब टीचर बोल रही है ये चीज़ स्टूडेंट को, तो it's a kind of an advice. ठीक है, it's a kind of an advice that the teacher is giving to the students. So जब हम लोग उसको चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, the teacher advised the students not to waste time. ठीक है. Sentence number 8, John said to his mother, I will go to bed now. John told his mother that will would बन जाएगा, and now जो तुम लोगों ने टाइम रेफरेंसेस में किया है, टाइम एंड प्लेस रेफरेंसेस जब हम लोग कर रहे थे, now क्या हो जाएगा यहाँ पे, then he would go to bed then. Okay, alright. Sentence number 9, he said to me, let's go home together. ना जब सेंटेंस में लेट्स रहता है ज़्यादातर वो इट्स काइंड ऑफ लाइक इट इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल या फिर सजेशन, इस तरीके का कुछ इंडिकेट करता है. तो हम लोग कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रपोज्ड, सजेस्टेड, ये सब यूज़ कर सकते हैं. सो ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो होम टुगेदर. ओके, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर जो है वो लगा कर यूज़ करना है, दैट वी शुड गो होम टुगेदर. ओके. सेंटेंस नंबर 10, आर यू अलोन माई सन, आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी. ना ये सॉफ्ट वॉइस जो है, सॉफ्ट वॉइस इज द स्पीकर इन दिस सेंटेंस. ठीक है, सॉफ्ट वॉइस क्या है, स्पीकर है सेंटेंस में. सो अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड, ये स्पीकर हो गया सेंटेंस का. इफ़, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई WH वाला सेंटेंस नहीं है, दो इट इज़ अ सेंटेंस, लेकिन कोई WH वाला या फिर वही वॉट, व्हेन, वेयर, ये सब वाला नहीं है, तो हम लोग इफ़ लगा सकते हैं यहाँ पर. अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ़ आई वॉज अलोन. ओके, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 11, he exclaimed sadly that he was undone. Now this sentence is in
रिपोर्टेड स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है जिसको डायरेक्ट स्पीच में तुमको चेंज करना है. ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन. इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना है. कैसे करेंगे हम लोग? एक्सक्लेम्ड जो है लाइक इसको हम लोगों को पता है ये चीज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, अलास जो सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा होगा आज तक, दिस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सैडनेस ऑफ द स्पीकर इन द सेंटेंस. ठीक है. ज़्यादा ऐसे ही होता है कि अलास जब भी यूज़ करते हैं तो स्पीकर की सैडनेस बताने के लिए यूज़ करते हैं वर्ड. सो वी कैन चेंज इट इन दिस वे. ही सेड कॉमा ओपन कोट्स अलास एक्सक्लेमेशन मार्क आई एम अनडन. ओके. क्लोज कोट्स. ही सेड कॉमा अलास आई एम अनडन. ये तुम्हारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का हो जाएगा. सेंटेंस नंबर 12. फादर सेड टू मी मे यू पास द एग्जामिनेशन. ना मे यू जो वर्ड है ज़्यादातर ये ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे किसी चीज़ के लिए विश करना, होप करना, प्रे करना, ये सब लाइक इंडिकेट करता है ये चीज़. तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सेड टू मी की जगह पर प्रेड भी लगा सकते हैं. फादर प्रेड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन. प्रेड यहाँ पे सेड टू मी की जगह पर लगा एंड मे की जगह पर माइट लग गया. फादर प्रेड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन. ओके. ऑलराइट. नाउ ये तो एक्सरसाइज तुम्हारा सॉल्व हो गया. वी हैव सॉल्व वन एक्सरसाइज. नेक्स्ट जो 8 सेंटेंसेस है, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. ठीक है. प्लीज़ रीड द रूल्स once again by yourself and try and solve these 8 sentences. Change the narration of the following sentences and it will be a kind of revision for you. जितना भी एक्सप्लेन हुआ है, पॉइंट्स, रूल्स जितना भी कराया है आज तक, जितना भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हुआ है इस चैप्टर का, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द रूल्स. ट्राई एंड मेमोराइज दोज रूल्स. मेमोराइज तो नहीं बोल सकती, एक्चुअली कीप प्रैक्टिसिंग. तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू जब भी ग्रामर करोगे. सो ओके, थैंक यू.